منٹ چند لمحے ہوں، صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صرف تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے مسکرا رہا ہے، دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے اور اللہ میرا راضی ہے۔ جتنا بھی کوئی خطا کار کہتا ہے اپنے آپ کو، گناہ گار کہتا ہے اپنے آپ کو، سیاہ کار کہتا ہے اپنے آپ کو، جتنا بھی خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہے، جتنا بھی گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہے، وہ صرف یہ دیکھے چند لمحوں میں، بس اس تصور میں بیٹھ جائے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، کہ اللہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کہ کملی والے کا فرمان ہے، میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تیری مسکراہٹ کا گمان کر دیا اور تو یقیناً ہمیں مسکرا کے دیکھے گا، ہمیں جب مسکرا کے دیکھے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ وہاں سعودی عرب میں تھے، تو کہنے لگے میں وظیفے پڑھتا پڑھتا گیا اپنے کفیل کے پاس کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے گا، میں نے چھٹی پہ جانا ہے، میں کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ تو اپنے دوستوں بیٹھا تھا، تو میں ایسے گیا نا، میں سلام کیا تو اس نے ایسے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ کر مسکرا پڑا، میں نے کہا بس مسکرائے میرا کام بن گیا۔ کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ کام ہے۔ اس نے اپنے جو ہے خادم کو بلایا، انہوں نے کہا جو کہتا کر دے۔ کہا کہ اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ نے مجھے امید دی کہ میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئی اور میری ناکامیاں ختم ہو گئی۔ چند لمحے اپنے دفتر میں، اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں، بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے گا، اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی، اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی، ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، ایک مسکراہٹ سے خون خواروں کو محبت دے دے، اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میری جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں۔ ایک تحفہ بھی ساتھ دوں گا، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے، بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا، ان خاروں کو محبت دے دے، اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میری جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں۔ ایک تحفہ بھی ساتھ دوں گا، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے، بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کہ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھ لیں، آنکھوں سے کرشمے دیکھیں، بندشیں، بیماریاں ختم، رزق وسیع، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی، اور جادو، جنات، اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ایک تحفہ بھی ساتھ دوں گا، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے، بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کہ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھ لیں، آنکھوں سے کرشمے دیکھیں، بندشیں، بیماریاں ختم، رزق وسیع، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی، اور جادو، جنات، اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔
अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह हमें इसका सिला दुनिया में भी अता फरमाए और इंशाल्लाह आखिरत में भी अता फरमाएगा। अच्छा किबला, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्टली तारुफ थोड़ी सी चीज़ों को हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी यूनिक है लाहौर के दाता की नगरी में इतना बड़ा म्यूजियम और आपकी मोहब्बत इसमें नजर आती जी। ये अपनी म्यूजियम है, मेरी अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल है, छोटा सा है तो जगह ये चूंकि थोड़ी है। इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज के इसमें, और पुरानी पुरानी चीजें बहुत ज्यादा, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊंट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियां देख रहा हूं मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊंट की हड्डियां हैं या कोई और? सिर्फ ऊंट की हड्डियां हैं, और ऊंट की ये देखे ना, ऊंट की खोपड़ियां पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियां ऊंट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियां। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊंट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नजर बद का इलाज है, और ऊंट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख भी है। अच्छा किबला, मैं म्यूजियम पे नजर गई है, वहां पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ जरा वो भी साथ साथ एक जो ना मुझे बड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या, मैं चाह रहा हूँ कि जरा उसकी कोई जो है तारीख आपसे पूछी जाए कि ये जो ना पुरानी चीजें, चूंकि मुझे शौक है पुरानी चीजें जमा करने का, तो इसका दौर ही खत्म हो गया। तो जिन चीजों का दौर खत्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूं। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीजें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है, और पुराना मुझे ये चीज विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नजर आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है ये जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीजें हैं जो हमारे पास ही हैं। सूरत नस्र, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें। 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत, और ये 2 अमल आपको जिंदगी में इंशाल्लाह बहुत काम देंगे। वो 2 अमल ये हैं कि सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सूरत नस्र सिर्फ और सिर्फ 17 बार आपने पढ़नी है असर के बाद, और 19 बार पढ़नी है मगरिब के बाद। बस 17 बार, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। आप देख के नहीं पढ़ सकते, मोबाइल पे पढ़ लें, कुरान पे पढ़ लें, किसी पारे पे। 17 बार असर के बाद और 19 बार मगरिब के बाद। क्या मिलेगा? इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फतूहात के दरवाजे देखें इसमें, फतूहात के दरवाजे, वो रिस्क की फतूहात, वो सेहत की फतूहात, वो रिश्तों की फतूहात, वो गैबी निजाम की फतूहात, वो गैबी बरकत की फतूहात, वो जिंदगी का कदम उठे कामयाब हो, नाकाम ना हो, जहां जहां राहें खुले, जहां जहां रास्ते खुले, जहां जहां मंजिल मिले, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरी बरकतों मेरे साथ हों। फतूहात फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजें मेरे साथ हो जाएं, बरकत की फौजें, रहमत की फौजें, रिस्क की फौजें, सेहत की फौजें, उसकी अता की फौजें, फरिश्तों की मदद की फौजें मेरे साथ हो जाए। ये अमल आप जब करेंगे, इस अमल में आपको बहुत बरकत मिलेगी, और यकीन से कीजिएगा। 17 और 19 का आदत याद रखिएगा, 17 असर के बाद और 19 मगरिब के बाद। आप असर की नमाज पढ़ के कर लीजिए, आप मगरिब की नमाज पढ़ के कर लें, लेकिन करना जरूर है। आप मगरिब के बाद यानी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ये अमल आप करें, इस अमल से आपको बहुत बहुत बरकत, बहुत रहमत है। किबला, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्टली तारुफ थोड़ी सी चीज़ों को हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी यूनिक है लाहौर के दाता की नगरी में इतना बड़ा म्यूजियम और आपकी मोहब्बत इसमें नजर आती जी। ये अपनी म्यूजियम है, मेरी अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल है, छोटा सा है तो जगह ये चूंकि थोड़ी है। इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज के इसमें, और पुरानी पुरानी चीजें बहुत ज्यादा, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊंट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियां देख रहा हूं मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊंट की हड्डियां हैं या कोई और? सिर्फ ऊंट की हड्डियां हैं, और ऊंट की ये देखे ना, ऊंट की खोपड़ियां पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियां ऊंट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियां। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊंट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नजर बद का इलाज है, और ऊंट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख भी है।
अच्छा कि मैं म्यूजियम में नजर गई है, वहां पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ जरा वो भी साथ साथ एक जो है ना मुझे पड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या, मैं चाह रहा हूँ कि जरा उसकी कोई जो है तारीख आपसे पूछी जाए कि ये जो है ना पुरानी चीजें, चूंकि मुझे शौक है पुरानी चीजें जमा करने का, तो इसका दौर ही खत्म हो गया। तो जिन चीजों का दौर खत्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूं। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीजें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है और पुराना मुझे ये चीज विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नजर आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है ये जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है। अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीजें हैं जो हमारे पास में है, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखिए ऊंट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, जी कालीन जो दरी है दरी। ये ऊंट के बालों की है। ये देखिए ना, ऊंट के बालों का कदीम कंबल, ये लिखा हुआ है ऊंट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते की खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी, किबला, इसकी क्या ये तारीख के पुराने वो बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल करते थे। जब तांबा, कांसी, पीतल इस्तेमाल करते थे, बेऔलादियां नहीं थी, बीमारियां नहीं थी, बुढ़ापे नहीं थे और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियां नहीं थी। जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियां, परेशानियों में मुब्तला हो गए। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि यूनिक पुरानी चीजें जी। जो जिस तरह टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, फिर यहाँ पे टाइपराइटर है, ये एक खास ही चीजें। और फिर शोहदा की तस्वीरें जो है, ये आपकी एक मोहब्बत पाक फौज से, शोहदा से। जरा मैं चाहता हूँ कि ये भी जो ना लोगों को नजर आए कि ये खाली रूहानियत के साथ साथ जो है, जिस तरह आपकी एक मोहब्बत है अपने मेरे वतन से, मुझे मोहब्बत है वतन के विरसे से, तो ये चीजें इसलिए मैंने संभाल के रखी। ये देखे ना, ये शोहदा की कैप है, ये उनकी पानी पीने की बोतल है और ये उन्हीं का संदूकचा है पुराना। ये तस्वीरों के अंदर जो है, अगर हम इसको देखा जाए तो बड़े बड़े शोहदा में नजर आ रहे हैं। ये भी तो मेरा विरसा है ना। मैंने अपना विरसा जमा किया, तो जो मेरा विरसा है तो उसमें तो विरसे को मैं शामिल कर रहा हूं। मैं देखो राणा साहब को बात करना चाह रहे हैं, इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? सर, मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि मैं, चूंकि आई एम आल्सो सन ऑफ मोटायर, और मेरे वालिद साहब ने 3 जंगें लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वार 65 और 71 में वो शहीद हुए। तो मैं अचानक ये नजर पड़ी और मेरी आंखों में मुझे नमी आ गई है। वही देखा कि आपने बड़ी मोहब्बत से इन तस्वीरों को उठाया, और ये किबला का भी एक मोहब्बत अपने वतन से, अपनी पाक फौज से, अपने जवानों से और अपनी चीजों से मोहब्बत जो है, और वतन की जो मोहब्बत, ये भी दीन है। मेरे सरकार ने फरमाया कि ये भी दीन है। तो किबला ये जो है ना, हमें हमारी बड़ी एक यूनिक बात थी और देख के बड़ी खुशी हुई है कि आपने अपने विरसे को संभाला हुआ है। हमारी नौजवान नस्ल जो है, ये उस तरह अपने विरसे से प्यार नहीं करती। किबला इसकी क्या वजह आप समझते हैं? वो हमारा ही कसूर है, हमने नहीं समझाया। नस्लों का तो कसूर नहीं है। हम कहते हैं ये बादशाह की जिम्मेदारी है, ये वर्दियों की जिम्मेदारी है, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो नस्लों का तो कोई कसूर नहीं, वो मेरा कसूर है। हर बंदा ये कहे। अच्छा किबला, इसमें यहाँ पे एक बड़ी यूनिक चीज साइकिल में देख रहा हूँ, बड़ी पुरानी है। आपने साइकिल पे सफर जो है ना, स्कूल जाते हुए गांव में किया, तो आपने लगता है उस याद को भी। मैं गांव में नहीं रहा, मैं शहर में रहा हूँ। शहर में। शुरू से मेरा बचपन सारा शहर के हैं हम, लेकिन उसके बाद मैंने साइकिल पे सफर किया। मेरे पास अपनी साइकिल थी जो मैंने सफर करता था। अब लोग ना उस तरह सेहतमंद भी नहीं है किबला, लोग जो ना साइकिल पे सफर भी नहीं करते, सवारियां आ गई। आप क्या कहते हैं? तो साइकिल तो खुद एक वर्जिश है और सेहत और फिटनेस का राज है। अच्छा, ये जो पड़े हुए पत्थर है, इनकी क्या, ये कहाँ के पत्थर हैं? पुरानी ईंटें हैं जो पुरानी इमारतों से पड़ी थी, गिरी थी, उन्होंने फेंक दी। मैंने उठा के उनको संभाला, रखा, और ये भी हमारा विरसा है। ये भी कुछ यहाँ पे पोर्शन है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि चरखा भी पड़ा हुआ है। फिर दरिया सिंध के आर पार सामान ले जाने के लिए कदीम कश्ती का नीचे है, इसके ऊपर कश्ती रख के इस कश्ती को फिर आर पार ली जाती।